Hello dear, as you all know that last time we had discussed, or I can say we have started new unit which is known as utility analysis. And in utility analysis, with little bit introduction and the meaning, right, main three, that is what do you mean by utility, then what is marginal utility and what is total utility, right. With considering the briefing or introduction, or I can say journey of demand analysis, we have taken into consideration the important concepts of utilities, right. That is what you mean by utility, marginal utility, total utility, etc. And then we had discussed with our table, right, the relationship between marginal utility and total utility. By that table we can understand that how to find out marginal utility from the total and total from the marginal, because they are actually related, right. As you all know that utility is a satisfying power of goods and services, means every product and every service has a satisfaction power or utility, right. Marginal utility talks about addition. Addition can be positive or negative, right. So meaning wise we can say marginal utility is an addition to the total utility caused by consuming one more unit of any product. मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट का एक यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो टोटल यूटिलिटी में कितना फ़र्क पड़ेगा, वो जो फ़र्क पड़ने वाली बात है दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, वो जो एडिशन है, राइट, जो फ़र्क पड़ता है टोटल यूटिलिटी में, जो चेंज आता है, दैट चेंज इज़ नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी, राइट. सो you know, if you want to find out marginal utility mathematically from total utility, then I can say total utility 2 minus total utility 1, that will be your marginal, right. And if you want to find out total utility, as meaning wise it is addition of all marginals, so mathematically we can find out total utility like this: marginal utility 1 plus marginal utility 2 plus 3 plus 4 and so on, right. So with that all addition of marginal you can get total, okay. By that understanding, if you remember last time we had explained this table, right. Now if I want to find out this marginal utility, so how can find out total utility 2, that is new, that is here 17, minus 1 total utility 1, that is 10, so 17 minus 10 will be 7. Similarly new will be 22, right, and 22 minus 17, that is 5, 24 minus 22, that is 2, 24 minus 24, that is 0, right. So total utility 2 minus total utility 1, that will be the answer of your marginal. Similarly marginal you can find out with addition of all marginal, means 10 plus 7, that is 17, then 17 plus 5, that is 22, 22 plus 2, that is 24, like that, okay. So that was our last lectures, I can say rebrushing, right. Now with the again repetition of this concept of utility and the relationship between total utility and marginal utility, my today's topic is the most important law, right, which is known as diminishing marginal utility principle, right. Now diminishing marginal utility principle is actually a biggest law, right, in this entire chapter, or I can say from the examination point of view, this question or topic is in your language most IMP, right. In full 10 marks question, normally in every exam we ask straightforward diminishing marginal utility principle, right, where like law of demand you have to explain everything
right? I have given you the structure of law of demand exactly like that. You have to explain this law also, right? अगर आपको याद है तो लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया था आंसर का. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद मीनिंग ऑफ डिमांड, देन एजम्पशंस, राइट, देन स्टेटमेंट, देन explanation with example, then explanation with diagram, then limitations, then exceptional case, etc etc, right? तो वैसे ही आपको ये आंसर भी एग्ज़ाम में लिखना है, एंड इन दैट क्रोनोलॉजी ओनली विल डिस्कस इन दी वीडियो सेशन, राइट? मतलब जैसे आपको लिखना है वैसे ही वन बाय वन मैं अपने लेक्चर में भी कंसिडर करूँगी, कवर करूँगी, तो आपको पता चल जाएगा आंसर कैसे लिखना है. पर स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया है, इसलिए लेट अस नॉट वेस्टिंग मच टाइम इन गिविंग यू द सेम स्ट्रक्चर. यहाँ भी आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, जो मैंने अभी आपको रिपीट किया वो सब आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, जो लास्ट लेक्चर की बात है थोड़ी बहुत, राइट? उसके बाद आपको लिखना है कि हु हैज़ एक्सप्लेन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, यूटिलिटी एनालिसिस हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय मार्शल, right, and it is known as extension of theory of demand with the help of new concept, that is utility concept, right? And then you have to write down meaning of utility. That is also I have given you in the last lecture, and just now also we have repeated it, right? That is utility is a satisfying power of goods and services, right? तो इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आता है मीनिंग, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है. अभी जो है वो है स्टेटमेंट, राइट, ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. अभी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ है, देखिए ये है स्टेटमेंट. मतलब ये लॉ जो है वो एक्सप्लेन क्या करता है, राइट? तो उसका जिस्ट जो है, हार्ट ऑफ द थियोरी जिसको बोलते हैं, वो है इफ़ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट एंड कंज्यूमर कंज्यूम एनी कमोडिटी कंटिन्यूअसली देन द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश, राइट? इस दो लाइन में पूरा थियोरी आ जाता है, राइट, जो हम मीनिंग से बताएंगे, एग्जाम्पल से बताएंगे, डायग्राम से बताएंगे, फिर उसका लिमिटेशन, एक्सेप्शनल केस जो भी कवर करेंगे, राइट, ये पूरे लॉ में उसका जिस्ट जो है, हार्ट जो है स्टेटमेंट, वो ये है, राइट, जो दो लाइन है खाली. इफ़ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. अभी लॉ ऑफ डिमांड समझने के बाद आपको ये पता चल गया है कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट मीन्स देर आर सर्टन एजम्पशंस. Means we have assumed that in the constant situation of these and that only, right, the law is applicable, otherwise the law will not be applicable. Okay, तो अभी ये कंडीशन है, if other factors remain constant, ये है कंडीशन. अभी ये कंडीशन अगर सही है तब भी नेक्स्ट पार्ट इज राइट. और नेक्स्ट पार्ट क्या है? वो है इफ़ कंज्यूमर कंज्यूम एनी कमोडिटी कंटिन्यूअसली. मतलब कोई एक कंज्यूमर कोई चीज़ को कंज्यूम करता है, यूज़ करता है कंटिन्यूअसली मतलब विदाउट ब्रेक, तो देन द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस मतलब रिड्यूस, डिक्रीज होना, कम होना, राइट? तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होगी ना. आपको मार्जिनल यूटिलिटी पता है, मार्जिनल इज नॉट ओनली यूटिलिटी, right? Marginal is different from even total utility, right? So only we are talking about marginal, not about utility, not about total utility, right? इसीलिए इस लॉ को बोलते हैं diminishing marginal utility principle. मतलब the entire theory talks about only marginal utility, right? But to understand marginal utility you should understand utility and total utility both. That's why in a first lecture we had discussed about the three concept first, right? तो अभी आपको सब पता चल गया है कि ये थियोरी कौन सी है, किसने दी है, उसमें क्या एक्सप्लेन किया है, राइट? उसमें कौन से तीन कॉन्सेप्ट यूटिलिटी के हैं, उन सब के बीच में रिलेशन क्या है, ये सब पता चल गया है. तो
तो अभी आपके लिए खाली ये 2 लाइन जाननी है कि इफ़ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब अगर ये सिचुएशन जो भी है वो गिवन है जिसमें कोई फ़र्क नहीं आता है और ये कंडीशन एप्लीकेबल है मार्केट में, तब भी ये सेकेंड वन सही होगा। और वो क्या है कि अगर कंज्यूमर कंटिन्यूअसली कुछ भी कंज्यूम करता है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, दैट इज़ एडिशन, यू नो मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी कॉज बाय कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ एनी प्रोडक्ट। मतलब 1 बाय 1 वो कंज्यूम करता जाए तो उसकी जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है विच इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, राइट, वो कम होती जाएगी। ओके, ये है हमारा हार्ट ऑफ द थियरी, स्टेटमेंट ऑफ द थियरी। अभी क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम एनी प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली then why his marginal utility decreases, right? But before we discuss that, let me explain assumptions, which is the next topic of the theory. अभी assumptions हमारे पास बहुत ज़्यादा important 4-5 assumptions है and all are very much important, and without understanding this 5 major assumptions we can't explain diminishing marginal utility principle, because the entire theory is based on this 5 assumptions, right? If these assumptions are right, then only a statement of the theory will be perfectly right. मतलब अगर ये कोई assumptions अगर सही नहीं है और मार्केट में अगर अवेलेबल नहीं है ऐसे assumptions, तो पूरा लॉ गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गलत, ये थियोरी सही तभी है जब वी एज्यूम सर्टन थिंग्स। इसलिए हमने स्टेटमेंट में सबसे पहले शुरुआत की इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, राइट। आपको ये ख्याल आता होगा कि सभी थियोरी में ये व्हाई वी आर एज्यूमिंग सर्टन थिंग्स इनिशियली। तो मैंने आपको डिमांड थियोरी में भी बताया था कि एट प्रेजेंट यू आर इन अ वेरी प्राइमरी सेम, राइट, वेरी फर्स्ट सेम of the BBA course, and to explain all complicated things in a initial stage that will be a great trouble for you. आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जैसे आपको स्विमिंग आता ना हो और मैं आपको सीधे ही 6 फीट में धक्का दे दूं तो आप डूब जाओगे, राइट। इसलिए आप डूबे नहीं, इसलिए हम लोगों ने ये जो पूरा सिलेबस है उसको थोड़ा इजी बनाया है। सेम 1 में हम सर्टन थिंग्स एज्यूम करते हैं जिससे कि आपको फंडामेंटल लॉ समझ में आ जाए। जैसे ही आपको वो फंडामेंटल सब कुछ समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे नेक्स्ट सेम में हम एक एक एजम्पशन को रिमूव करते जाएंगे और प्रैक्टिकली इकोनॉमिक्स हाउ इट इज़ एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट, राइट। मार्केट में क्या होता है, रिसर्च बेस्ड, राइट, पूरा मार्केटिंग, पूरा मैनेजमेंट, वो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स हम समझाते जाएंगे, राइट। तो अभी आपके लिए, क्योंकि आपको स्विमिंग नहीं आता है, तो धीरे धीरे सिखाना ज़रूरी है, इसलिए वी आर एज्यूमिंग सर्टन थिंग्स। अभी देखते हैं वो एजम्पशंस क्या है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, फर्स्ट एजम्पशन है यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट आर होमोजीनियस। नाउ सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि होमोजीनियस मतलब क्या। तो फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होमोजीनियस मीन्स आइडेंटिकल, मतलब सेम टाइप, राइट। और जो गुजराती मीडियम के बच्चे हैं जिन्होंने मुझे थोड़ी क्वेरी भेजी है, एंड आई एम एग्री विद दैट, आई एम एग्री विद ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ गुजराती मीडियम जिन्होंने स्कूलिंग गुजराती मीडियम में किया है, कि उनको कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है ड्यू टू इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं है। और आप सही भी हो, तो मुझे जहाँ जहाँ लगेगा कि ये वर्ड थोड़ा शायद आपको डिफ़िकल्ट लगे, मुझे नहीं पता, आपको लगे भी ना भी लगे, आप इतने ब्रिलियंट भी हो सकते हैं कि आपको गुजराती मीडियम के होते हुए भी समझ में आ जाएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर कहीं लगे कि ऐसा है, तो आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर ड्यूरिंग द लेक्चर कि जो भी वर्ड मुझे लगेगा कि आपको शायद ना पता हो, मैं बताती जाऊँगी, और हो पाएगा हिंदी में बताऊँगी, नहीं तो गुजराती में भी बताऊँगी, ओके। मेरे लिए आपका सेटिस्फैक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट। आपको समझ में आने चाहिए, लैंग्वेज इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, वो तो आप सीख जाओगे। और गुजराती मीडियम वाले बच्चों को भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारी कॉलेज शुरू होगी, आपको समझ में आएगा कि बहुत इजी है,
ये अभी तो हम लोग वीडियो दे रहे हैं, तो हमको पता नहीं है कितने बच्चे गुजराती वाले हैं, आपके फेस से भी पता नहीं चलता कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, राइट। इसलिए हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं। पर अगर हमको ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चे गुजराती मीडियम के हैं जिनको समझने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो हम वीडियो में भी आपको हिंदी में समझाएंगे। अगर आपको कहीं ऐसा लगा तो हम आपको गुजराती में भी बता देंगे। और हमारे कॉलेज में तो ऐसी सिस्टम है कि हम 2 डिवीज़न अलग करते हैं, जिसमें एक डिवीज़न उन लोगों के लिए है जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, जिनके क्लास में हम कंटिन्यूसली इंग्लिश में पढ़ाएंगे, राइट। और अगर उनको भी डिफ़िकल्टी कहीं लगी टर्मिनोलॉजी में तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हम हिंदी में कर देंगे, राइट। और बाकी का जो डिवीज़न है वो स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बच्चे गुजराती मीडियम से आते हैं, राइट। हमारे लिए वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप हमारे बच्चे हो, राइट। अगर कोई मुझे ये पूछे कि मैडम आपके लिए आपकी राइट आई वहाँ इम्पॉर्टेंट है कि लेफ़्ट आई, तो मैं तो बोलूँगी मेरे लिए मेरी दोनों आँखें एक बराबर, राइट। तो मेरे लिए मेरे गुजराती मीडियम के बच्चे भी इतने ही मेरे दिल से क्लोज़ है जितने कि इंग्लिश मीडियम के। तो हमारे लिए बच्चे इम्पॉर्टेंट है, वो कौन से मीडियम के हैं हमारे लिए दैट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट, राइट। तो एक हमारे यहाँ सिस्टम है कि हम एक डिवीज़न ऐसा करते हैं जो स्पेशली गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए तो होता है, जिन्होंने स्कूलिंग गुजराती मीडियम में की है, राइट। तो गुजराती मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल टेंशन ना रखें, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ आओगे, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 15-20 दिन में हमारी कॉलेज शुरू हो जाएगी, फिज़िकल कॉलेज क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ डिवीज़न अलग है। तो जैसे ही कोई प्रोफेसर आपके गुजराती मीडियम वाले डिवीज़न में आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको गुजराती में समझाने की कोशिश करेगा, राइट। पर फिर भी मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको जितना हो पाए इंग्लिश में सुनना है, इंग्लिश में पढ़ना है और इंग्लिश में लिखना है। इसलिए जितना हो पाए आप इंग्लिश का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, राइट। दिस विल बी मोर हेल्पफुल टू यू व्हेन यू नीड टू राइट डाउन योर क्वेश्चन पेपर इन द एग्ज़ाम, ओके। क्योंकि वहाँ तो इंग्लिश में ही लिखना है। उस टाइम ऐसा हो सकता है कि ख्याल गुजराती में आए और इंग्लिश सूझे ही नहीं, तो नहीं चलेगा, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट एजम्पशन है, यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट आर होमोजीनियस, राइट। तो होमोजीनियस का मतलब है आइडेंटिकल और सेम टाइप, मतलब एक जैसी चीज़ों की बात हम कर रहे हैं। होमोजीनियस मतलब एक सरखा, राइट। आइडेंटिकल सेम टाइप। So here in the law, we have assumed that whatever product consumer is consuming, right, is homogeneous. मतलब मान लो कंज्यूमर फूड आइटम को कंज्यूम करता है, या कपड़े पहनता है, या और कुछ भी सर्विस कंज्यूम करता है, राइट। तो वो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके सारे के सारे यूनिट्स वो बहुत एक जैसे हैं, होमोजीनियस है, आइडेंटिकल है, सेम टाइप है। अभी सेम टाइप है मतलब फॉर एग्जांपल लेटर से मैं अगर आपको ये बोलूँ कि माय स्टूडेंट्स आर यूजिंग शैम्पू फॉर वॉशिंग देयर हेयर्स, राइट। तो ये बात हो गई अबाउट द प्रोडक्ट, राइट, कि कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूम करता है। तो हमने ले लिया हमारे एग्जांपल में शैम्पू। तो अभी ये एजम्पशन के हिसाब से ऑल यूनिट्स ऑफ और ऑल बॉटल्स ऑफ द शैम्पू शुड बी होमोजीनियस, एक जैसा होना चाहिए। अभी एक जैसा मतलब क्या, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि देयर शुड बी सेम कलर, शेप, टेस्ट, स्मेल, वेट, साइज, क्वालिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसका कलर, शेप, टेस्ट, स्मेल, वेट, साइज, क्वालिटी सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी होमोजीनियस, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इंस्टेड ऑफ शैम्पू assume that you are eating something, let us say you are eating grapes, right। आप क्या बोलते हो आप गुजराती में उसको, द्राक्ष, राइट। तो आप तमे लोको द्राक्ष खाओ छो એવું एज्यूम करो। when you are eating grapes, तो let us say when you eat first grape it will be very sharp, बहुत खट्टी है, राइट। अगर वो खट्टी है तो उसमें से आपको सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा। फिर एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर
धीरे धीरे एज्यूम दैट इट विल कमिंग स्वीटर एंड स्वीटर, तो आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ ये कंसिडर करना नहीं चाहते कि अगर ऐसा हो कि एक प्रोडक्ट खट्टा हो, एक ग्रेप्स खट्टी हो, फिर स्वीट हो, फिर एवरेज हो, तो वी कांट मेजर यूटिलिटी कंटिन्यूअसली, राइट, क्योंकि उसमें तो कोई रिदम ही नहीं मिलेगा, कभी ये कभी वो ऐसा होगा। इसलिए मार्शल ने एज्यूम किया है कि वॉट एवर कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग, right, all those units of the product are homogeneous, then only we can estimate utility continuously, नहीं तो zigzag मिलेगा, right, कभी कभी बढ़ेगा सेटिस्फैक्शन, कभी घटेगा, तब तो हमारा पूरा लॉ गलत हो जाएगा। क्योंकि लॉ का कहना क्या है, स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ़ कंज्यूमर कंज्यूम एनी प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली देन हिज मार्जिनल सेटिस्फैक्शन विल डिक्रीज। बट अगर मैंने जैसे आपको बोला कि बंदा ग्रेप्स खा रहा है और शुरू में 2, 5, 10 ग्रेप्स खाते हुए वो खट्टी खट्टी आती है, तो उसका सेटिस्फैक्शन तो कम नहीं होगा। जैसे ही वो नेक्स्ट 11th ग्रेप्स खाएगा और वो स्वीट आ जाएगी तो उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, राइट। तो लॉ विल बी रॉन्ग, राइट। इसलिए मार्शल ने बोला है, एज्यूम किया है कि बंदा जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है वो होमोजीनियस है, मतलब उसका कलर, शेप, टेस्ट, स्मेल, वेट, साइज, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, राइट, बिल्कुल सेम जैसा है। अगर शैम्पू है तो शैम्पू की क्वालिटी, शैम्पू की बॉटल, साइज़, वेट, स्मेल, कलर, राइट, उसका टेस्ट नहीं होता है तो वो नहीं देखने का। तो सारा का सारा जो पैरामीटर्स है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, इट इज़ सेम, राइट। दैट इज़ व्हाट एज्यूम बाय मार्शल, राइट। अगर वो एज्यूम ना करे, मतलब इफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट आइडेंटिकल देन मार्जिनल यूटिलिटी विल इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिमिनिश। मतलब कंज्यूम करने से तो एक्चुअली सेटिस्फैक्शन कम होना चाहिए पर उसकी जगह पर वो बढ़ जाएगा, राइट। अगर आपको एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि मुझे हुआ, अगर मैं क्लास में होती तो आपको पूछती कि दिस स्टेटमेंट इज़ राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू, एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर योर मार्जिनल यूटिलिटी रियली डिमिनिश, तो आपको मुझे आंसर देना पड़ता कि आप सच में बिलीव करते हो कि आप कुछ भी कंज्यूम करते जाओगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल कि सपोज आपको बहुत भूख लगी है, राइट, यू आर वेरी मच हंग्री एंड व्हेन यू आर rushing towards your home, right, and when you reach to your home you let us assume that you ask for your meal to your mom कि मम्मा मुझे भूख लगी और मुझे खाना दो, right, क्योंकि आप बहुत भूखे हो और आपकी मम्मी आपको ऑन द स्पॉट खाना देती है। तो when you eat first chapati from your meal, right, when you take first bite of your meal, what will happen to your utility? You will get maximum utility, right, and then as you consume more and more chapatis, right, or vegetables, dal, chawal, whatever you are eating, right, then as you consume more and more, मतलब एक रोटी खा ली, उसके बाद दूसरी खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई, तो जैसे जैसे आप ज़्यादा कंज्यूम करते जाओगे, रोटी खाते जाओगे, आपका यूटिलिटी कम होता जाएगा, राइट, और धीरे 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 यू विल बी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, देयर वोंट बी मोर हंगर नाउ, आपको भूख रहेगी नहीं और आप मम्मा को बोलोगे कि मम्मा बस हमको अभी नहीं खाना है। वाई? बिकॉज नाउ देयर इज़ नो हंगर, ओके, आपको भूख नहीं है, सेटिस्फाइड आप हो गए, राइट। तो देखिए इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, when you have taken first chapati, when you consume first chapati, your utility was highest, right, and then as you consume more and more, means second, third, fourth chapatis continuously, then your marginal utility decreases, right। आपकी जो satisfaction थी, extra satisfaction जो 1 by 1 यूनिट से आपको मिल रही थी, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो ज़ीरो हो जाएगी,
जब आप खाना खाते हुए खड़े हो जाओगे, हाथ धो के पानी पी लोगे कि बस अभी नहीं खाना है, राइट? तो ये है लॉ जो मार्शल ने बोला है कि इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट देन एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर योर मार्जिनल यूटिलिटी विल डिक्रीज, जो परफेक्टली राइट है, राइट? जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि बात बिल्कुल सही है। जैसे हम ज़्यादा खाते जाते हैं, हमारी यूटिलिटी कम होती जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वी डिडंट गेट एनी यूटिलिटी, दैट इज़ योर ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? और अगर मान लो आफ्टर गेटिंग ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी, इफ समवन इज गिविंग यू फूड बाय फोर्स, રાઈટ? जैसे गुजराती लोगों तो एवी सिस्टम है कि आग्रह करीने खवड़ावे, खाओ खाओ प्लीज खाओ खाओ, तमने तमारी सासू ना सम, खाओ खाओ, ओके? सो इफ यू आर डूइंग दैट मीन्स इफ समवन इज ऑफरिंग यू बाय फोर्स के यू हैव टू ईट फॉर मी प्लीज, राइट? एंड इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इफ यू ईट फर्दर, राइट, देन देयर विल बी नेगेटिव यूटिलिटी। मतलब अगर बार बार ऐसे फोर्स करके आपको कोई खिलाता जाएगा तो वॉमिट हो जाएगी, राइट? और वो जो वॉमिट है टेक्निकली इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, उसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं नेगेटिव यूटिलिटी, राइट? तो ये बहुत नेचुरल है जो मार्शल ने थ्रू लॉ एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है कि इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट एंड कंज्यूमर कंज्यूम कंटिन्यूअसली देन हीज मार्जिनल यूटिलिटी विल डिमिनिश, राइट? मतलब वो कुछ चीज़ें अगर एज्यूम कर ले, जैसे कि प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अगर एज्यूम कर ले तो, और वो कंज्यूमर कंटिन्यूअसली कंजम्पशन करता जाए, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मतलब एडिशन, एक्स्ट्रा यूटिलिटी विच ही इज़ गेटिंग फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ हिज कंजम्पशन, राइट, विल डेफिनेटली डिक्रीज, ओके? तो ये जो लॉ है इसमें ये एजम्पशन बहुत एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर ये यूनिट्स होमोजीनियस नहीं है, जैसे मैंने ग्रेप्स का एग्जांपल दिया, जैसे मैंगो आप खा रहे हो, पहले खट्टी आए, राइट, तो आपको सेटिस्फैक्शन भूखे होते हुए भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, और आप जैसे खाते जाओगे और मीठी मीठी होती जाएगी तो आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, राइट? तो इन दैट केस व्हेन प्रोडक्ट्स आर नॉट होमोजीनियस, तो इंस्टेड ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी योर मार्जिनल यूटिलिटी विल इंक्रीज, सो लॉ विल बी रॉन्ग। जो मार्शल ने एक्सप्लेन किया स्टेटमेंट वो पूरा गलत हो जाएगा। इसीलिए मार्शल ने बोला है कि मैंने जो भी लॉ एक्सप्लेन किया है वो तब भी परफेक्टली राइट है जब जब सर्टन थिंग्स आर कांस्टेंट, ओके? मतलब फर्स्ट वन जो है यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनियस। अगर ये एजम्पशन सही नहीं है कि प्रोडक्ट्स आर नॉट होमोजीनियस, देन लॉ विल नॉट बी राइट, ओके? द लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो अगर ये बात सही आपको ढूंढनी है तो उसके लिए प्रोडक्ट का होमोजीनियस होना एसेंशियल है, राइट, इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। देन द सेकेंड एजम्पशन इज continuous consumption, means Marshall has assumed that whatever consumer is consuming, even if it is a product, commodity or service, he is consuming continuously. Now continuously मतलब without break, right, means there is no break। मतलब मान लो आप भूखे हो, घर गए, मम्मी के पास खाना मांगा, मम्मी ने आपको कंप्लीट मील दिया, राइट, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ आपको दिया थाली में परोस के, और आपने खाना भी शुरू कर दिया। पर मान लो आपकी मम्मी ने पहले आपको आधी रोटी दी, उसके बाद बोला कि अभी बेटा मैं 2 घंटे के बाद आपको आधी रोटी दूंगी, राइट? तो क्या होगा आपका यूटिलिटी के साथ, राइट? आपको बहुत भूख लगी है, आधी रोटी जब मिली आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला। फिर अगर 2 घंटे के बाद मम्मी बोलेगी कि बाकी का मैं दूंगी, तो 2 घंटे के बाद जब आप आपकी आधी रोटी खाओगे तभी आपको और ज़्यादा यूटिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि आप तो फिर से भूखे हो गए। एक तो भूखे थे ही, राइट, आपकी भूख को मम्मी ने सेटिस्फाइड तो किया ही नहीं, और ऊपर से ब्रेक दे दिया बहुत लंबा वाला, राइट? तो ऐसे ब्रेक से खाने से
आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी इंस्टेड ऑफ डिमिनिशिंग, राइट। इसलिए मार्शल ने एज्यूम किया है कि अगर आप कुछ भी खा रहे हो, मतलब या आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, तो दैट शुड बी कंटिन्यूअस, देयर शुड नॉट बी ब्रेक इन बिटवीन द कंजम्पशन, राइट। आपका जो कंजम्पशन है उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ओके। अगर ऐसा है और विदाउट ब्रेक यू आर ईटिंग कंटिन्यूअसली, then definitely your marginal utility will decrease, okay. So this assumption is again very much important, because in absence of this assumption also the law will not be applicable, right. Then we have the third assumption, that we can measure utility cardinally. Now cardinally means we can utility, that is satisfaction, right, in terms of number, right, or quantity, right. In technical word I can say it is numerical measurability of utility. Now numerical measurability of utility is we can measure utility in terms of numbers. Means let us say you are consuming 3-4 different products, right, A, B, C, D, like that. So from each and every product you can say how much of utility you are getting, right. For example, you can say from product A, ma'am, I am getting 5 units of utility. From B, I am getting 10 units of utility. And madam, I don't like C, that's why I don't have any satisfaction from C, right. तो ये आपने क्या किया? You have measured utility in terms of numbers, 5, 10, 0, like that, okay. So when you are estimating your utility in terms of number, then it is our third assumption that cardinal measurability of utility is there, right. So cardinal measurability of utility is nothing but measurability in terms of number, okay. In terms of number you are measuring utility, ओके. तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है, बहुत टेक्निकल वाला एजम्पशन. और पूरा लॉ ऑफ मार्शल हैज़ बीन डिपेंड ऑन दिस एजम्पशन. एंड इन SAM 3 व्हेन वी स्टार्ट फर्दर कंज्यूमर बिहेवियर विथ IC एनालिसिस, we'll again start with this assumption of cardinal measurability of utility, right. उसको सिंपली हम इतना कह सकते हैं कि वी कैन मेजर वी कैन एस्टिमेट यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर. मतलब आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हम नंबर में कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा मार्शल का मानना है, राइट. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. SAM 3 में भी आपका पूरा कंज्यूमर बिहेवियर की जो थियरी आएगी नेक्स्ट SAM 3 में, IC एनालिसिस, वो पूरा इस पर डिपेंड करता है, कार्डिनल यूटिलिटी पे. क्योंकि हिक्स इज़ द नेम ऑफ द ऑथर, राइट, और इकोनॉमिस्ट हु हैज़ एक्सप्लेन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. उसने मार्शल को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल मेजरेबिलिटी, और उसने उसकी जगह पर ऑर्डिनल मेजरेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है. तो वो जो चीज़ है बहुत अच्छी, प्रैक्टिकल पर थोड़ी डिफ़िकल्ट, वो हमने SAM 3 के लिए रखी है, वो हम आपको SAM 3 में समझाएंगे. बट दिस इज़ अवर एजम्पशन हियर इन SAM 1 टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रिंसिपल, दैट वी कैन मेजर यूटिलिटी कार्डिनली. इट मीन्स utility can be measured in a quantity or in a numerical numbers. It means we can say consumer gets 5 units of utility from his consumption of X, 3 units from consumption of Y, like that. In short, cardinal measurability of utility is taken into consideration during the operation of law, because Marshall has assumed that, right. Marshall ने ये assumption को assume किया है, इसलिए पूरे law में during the operation ये assumption present रहती है, okay. Then we have fourth assumption, and the fourth assumption is this: consumer is rational. Now when we say consumer is rational, आपको याद होगा शायद हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में भी डिस्कस किया था
कि कंज्यूमर इज रैशनल मीन्स ही विल स्पेंड हिज इनकम इन सच अ वे दैट ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब अगर आपको कोई ये बोले कि शिल्पा मैडम इज़ वेरी रैशनल, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि रैशनल का मतलब ये है कि मैडम के पास जितनी भी इनकम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मैडम की मंथली इनकम 5000 रुपीज़ है, तो ये 5000 रुपीज़ मैम ऐसे स्मार्टली खर्च करेगी कि उनको मैक्सिमम प्रोडक्ट भी मिले जो उनको चाहिए और उसमें से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिले, राइट? तभी मैडम को हम रैशनल कह सकते हैं, अदरवाइज हम मैडम को रैशनल नहीं कह सकते। ओके, सो you know, when we say consumer is rational, it means, you know, he will spend his income in such a way that he can get maximum satisfaction, right? वो इस तरह से अपनी इनकम को खर्च करेगा जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, तभी उसको हम रैशनल बोलते हैं। ओके, एंड मार्शल हैज़ एज्यूम दैट एवरी कंज्यूमर इन द मार्केट इज़ रैशनल, राइट? और हमको भी पता है सारे के सारे कंज्यूमर, हमेशा ही बायर इतने स्मार्ट होते हैं कि उनको क्या चीज़ सस्ती मिलती है, कितने में कहाँ मिलती है, कैसी प्रोडक्ट है, क्वालिटी कितनी है, अच्छी क्वालिटी है और सस्ती भी है तो वो पक्का ले लेगा, राइट? तो ये इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम दिस बिहेवियर वी कैन से कंज्यूमर इज़ रैशनल, राइट? अगर ऐसा बिहेवियर देखने को मिले मार्केट में तो पता चल जाएगा कि कंज्यूमर इज़ रैशनल। तो हम सब रैशनल है क्योंकि हम तो हमेशा ही सस्ता और अच्छा ढूंढते हैं, राइट? खाली हमको सस्ता भी नहीं चाहिए और खाली अच्छा भी नहीं चाहिए, हमको तो अच्छी क्वालिटी भी चाहिए और वो भी सस्ते में चाहिए, राइट? तो ये है फोर्थ एजम्पशन। देन उसके बाद है चॉइस एंड टेस्ट आर रिमेन कांस्टेंट। मतलब हमको तो पता है विथ चेंज इन फैशन, यू नो, कंज्यूमर्स टेस्ट, चॉइस, प्रेफरेंस ऑल्सो चेंजेस। बट मार्शल ने बोला है नहीं नहीं, हमको इतना कॉम्प्लिकेटेड अभी चेक नहीं करना है कि विथ ईच सेकेंड इफ फैशन विल चेंज व्हाट विल हैपन टू, यू नो, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। वो तो कितना टफ हो जाएगा, क्योंकि एक सेकेंड में फैशन बदले और सब कुछ बदले तो कितना रिसर्च करेंगे ईच सेकेंड में, राइट? इसलिए मार्शल ने एज्यूम किया है कि यू नो देयर इज़ नो चेंज इन फैशन and consumers taste, choice, preference is fixed for a given period of time, right? मतलब during the operation of the law there is no change in fashion, taste, choice, etc. okay, ये भी for the sake of simplicity we have assumed this, otherwise you know decide करना consumer behavior को बहुत tough हो जाएगा क्योंकि fashion तो बहुत quickly बदलती है। and the last assumption is यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट? मतलब मुझे आपका यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन को अगर चेक करना है तो मैं कैसे करूँगी? मैं ये देखूँगी कि आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिलता है। तो मुझे पता है एज ए इकोनॉमिस्ट कि अगर आप यू नो कोई चीज़ बाय करने के लिए इफ़ यू आर रेडी टू गिव हाई प्राइस, तो और यू नो एज ए इकोनॉमिस्ट आई कैन डेफिनेटली से you are getting more satisfaction from that product. समझ में आई बात? तो ये हमने क्या किया? we have measured utility in terms of money. मतलब मुझे अगर जानना था कि आपको प्रोडक्ट ए में से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो सबसे पहले मैंने ये एफर्ट डाला कि यू नो मैंने ढूंढा आपके बिहेवियर से कि आप प्रोडक्ट ए के लिए कितनी प्राइस देने के लिए रेडी हो, राइट? अगर आप उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए विलिंग हो, रेडी हो जाते हो, तो उसका मतलब है यू मस्ट बी गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दैट प्रोडक्ट, राइट? तो आप जितना ज़्यादा प्राइस देने के लिए रेडी, इसका मतलब है आपको उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसमें से मिल रहा है, राइट? तो मार्शल बिलीव दैट इफ अ कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे मोर then we can say he must be getting more satisfaction from that product. okay, तो इसको बोलते हैं utility can be measured in terms of money. मतलब you know कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन मिला वो अगर एस्टिमेट करना है तो वो पैसे के टर्म में एस्टिमेट किया जा सकता है
कि उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब उसने कितने पैसे खर्च किए वो लेने के लिए। अगर उसने वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च किए तो उसका मतलब है उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है, राइट। तो utility can be measured in terms of money, means consumer will spend more money for the product from which he gets more satisfaction. We can study consumer behavior by his propensity to spend money for the product. मतलब वो कितना पैसे खर्च करने के लिए रेडी है, on the basis of that we can determine satisfaction of that consumer, right, in terms of money. तो ये है assumptions। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये पूरा लॉ जो है उसमें सबसे पहले हमने आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, राइट, मतलब यूटिलिटी क्या है, उसको किसने एक्सप्लेन किया है, राइट, और यूटिलिटी एक्चुअली क्या समझाता है, वो कैसे डिमांड थियरी का एक्सटेंशन है, राइट, मार्शल ने उसको कैसे फर्दर एक्सटेंड किया, वो सारा जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, आज भी थोड़ा रिपीट किया था, वो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। उसके बाद आपको यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी की मीनिंग लिखनी है, राइट। वो मीनिंग लिखने के बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है कि इफ़ अदर फैक्टर्स कांस्टेंट मतलब क्या, और इफ़ कंज्यूमर कंज्यूम कंटिन्यूअसली देन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज मतलब क्या। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, ग्रेप्स के, मैंगो से रोटी आप खाते हो, सब कुछ मैंने जो बताया वो सारा आपको स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करना है। वो स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक रीज़न लिखना है। रीज़न काहे का कि वाई मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंजम्पशन आर नेगेटिवली रिलेटेड, क्योंकि ये तो नेगेटिव रिलेशन हुआ कि जैसे आप कोई चीज़ बार बार कंज्यूम करते हो तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगा, मतलब कंजम्पशन बढ़ता है तो सेटिस्फेक्शन कम होता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। तो ये नेगेटिव रिलेशन क्यों है, तो आप ही सोचो, आप जब मील लेते हो आपका दाल चावल सब्जी रोटी आप खाते जाते हो, राइट, तो आपका सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट यू डोंट गेट सेटिस्फेक्शन। ऐसा क्यों हुआ, रीज़न क्या है? बिकॉज एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर योर इंटेंसिटी ऑफ नीड डिमिनिश, राइट। आपकी जो ज़रूरत थी खाने की वो जैसे ही पेट भर गया वो कम हो गई, राइट। तो इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ नीड, राइट। જરૂરિયાતની તીવ્રતા ગુજરાતી મીડિયમ માટે, રાઈટ, જરૂરિયાતની તીવ્રતા એ જેમ જેમ ઓછી થતી જાય તેમ તેમ કન્ઝ્યુમરનો સેટિસ્ફેક્શન ઓછો થતો જાય. ગોટ ઇટ ગુજરાતી મીડિયમ સ્ટુડન્ટ? સો when you consume continuously any product, then your marginal utility will decrease because your intensity of need will diminish. So this is the reason behind the negative relationship of consumption and marginal utility. Okay, तो आपको स्टेटमेंट में इतना सब कुछ लिखना है. उसके बाद स्टेटमेंट के बाद ये पूरा एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझाना है 6 एजम्पशंस जो मैंने समझाई आपको, राइट. वो इस तरह से मैंने जैसे आपको स्क्रीन पर दिखता है, स्मॉल पैरा में आपको लिखना है व्हाट डू यू मीन बाय एजम्पशन एंड व्हाई वी एज्यूम दिस एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, राइट. वो समझाने के बाद हमें समझाना है एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, राइट. और वो डायग्राम वाला जो है वो हम ये वाला अभी नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उसके बाद लिमिटेशंस है, उसके बाद एक्सेप्शनल केसेस है, तो उसमें भी पूरा एक लेक्चर जाएगा, राइट. अभी पौना घंटा हो गया है, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, राइट. सो लेट मी complete here, right. Till then, bye bye. The next portion of the law we'll discuss next time. Thank you so much. Have a nice day.